Ayate. Good morning, all of you. Jai Jinendra. My name is Mohit Jain. I am a researcher and manuscript editor from Bhogidar Dahelchand Institute of Indology, Dindi, and research scholar from Jain Vishwabharati Institute, Narnu, Rajasthan. My paper title is Pollution Free Life, a Jain Perspective. Introduction. Protecting the environment is now essential for the survival of humanity. Jain philosophy provide ethical and practical solution for a pollution free life. जैन सिद्धांत कैसे पॉल्यूशन फ्री लाइफ को हमें बताते हैं कि कैसे प्रदूषण मुक्त जीवन जिया जा सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं. तो लिटरेचर रिव्यू. फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ जैन इकोलॉजी. तत्वाल सूत्र एंड द्रव्य संग्रह. तत्वाल सूत्र और द्रव्य संग्रह ये कहते हैं पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, ये 5 प्रकार के जो जीव हैं इनके अंदर चेतना पाई जाती है. मशहूर साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने भी ये माना है कि पृथ्वी में जीव होता है, अनछने पानी जन में भी जीव पाए जाते हैं. तो जैन फिलोसफी ये कहती है कि किस प्रकार से एक इंद्रिय जीव इनमें पाए जाते हैं, और जैन दर्शन की तो जड़ ही अहिंसा है. जब हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो पॉल्यूशन फ्री लाइफ नहीं हो सकती है. इसीलिए ये कहते हैं, हमने इस पेपर में 4 प्रकार के पॉल्यूशन को कवर किया है. तो ये कहते हैं कि आप ये 4 प्रकार के जो 5 प्रकार के जो जीव हैं एक इंद्रिय, उन तो इसीलिए सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए. पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी यही कहता है. ये तत्वाल सूत्र का सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवानाम, जो जैन दर्शन की नींव है. ये कहता है कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीव आपस में एक दूसरे का उपकार करते हैं, सभी जीव एक दूसरे से संबद्ध हैं. तो ये परस्परोपग्रहो जीवानाम सूत्र कहता है. पुरुषार्थ सिद्धि उपाय कहता है कि हिंसा जो है वो आसक्ति और घृणा से उत्पन्न होती है. इसीलिए ये आसक्ति और घृणा जो है भ्रम से होते हैं. इसीलिए भ्रम को क्या करना चाहिए, कम करने का प्रयास करना चाहिए. Aim and objective this research paper. The aim of this study is to examine the environmental crisis through Jain philosophy and assess its relevance for sustainable living. Objective: the conduct of comprehensive analysis and of the modern environmental crisis to provide a philosophical analysis of the environmental consciousness inherent of Jain philosophy, to present solution to various types of pollution from a Jain perspective, to clarify the practical utility of Jainism can guide all of humanity towards a pollution free life. The concept of environmental are comparative analysis of Jain and modern perspective. Modern environmental study define the environmental as the totality of biotic and abiotic elements. Biotic elements include humans and animals, plants and microorganisms. Abiotic elements include land, water, air, energy and space. Jain philosophy considered land, water, fire and air are living one-sensed beings. Jainism views the entire environment of conscious and interconnected. The principle parasparopagraho jivanam, human survival depends on harmony with our environment. From a Jain perspective, pollution are moral and spiritual issue, not only physical. Greed, negligence, violence and overconsumption are seen as cause of pollution. Jain principle like aparigraha, pramadacharya and anartha dandavrat promote environmental protection and a pollution free life. जैन सिद्धांत अपरिग्रह और प्रमादचर्या, प्रमाद की वजह से हम बहुत सारे जीवों की हिंसा करते हैं, और अनर्थ दंडव्रत, व्यर्थ में ही किसी कार्य को करना, तो इससे भी क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है. तो जैन प्रिंसिपल कहता है कि इनको जितना हो सके इन व्रतों का पालन करते हुए हम इसको कम कर सकते हैं.
Pollution versus violence, ahimsa perspective. Pollution is not only physical but moral and spiritual violence. Air, water, soil and biological pollution harm living beings. Non-violence, ahimsa is the foundation of environmental protection. Major type of pollutions. Pollution are many types, but I covered in my research paper 4 type of pollution: biological pollution, soil pollution, water pollution, air pollution. Pollution are many types, but solution is one, only Jainism. So Jain solution: biological pollution, use of filter and warmed water, emphasis of food purity and avoiding stain of impure food, non-violent, vegetarian and sattvic diet, avoidance of eating at night, protection of all living beings as emphasized in आचारांग सूत्र. तो हम सात्विक डाइट करेंगे, अहिंसक जीवन पद्धति जिएंगे और रात में भोजन मतलब सोने के 4 घंटे 3 घंटे पहले भोजन करेंगे, तो वास्तविकता में ये बायोलॉजिकल पॉल्यूशन से हम बच सकते हैं. जैन सॉल्यूशन, स्वाइन पॉल्यूशन. जैन दर्शन का एक सिद्धांत है व्रत है अनर्थ दंड व्रत. वो कहता है कि व्यर्थ में ही भूमि को नहीं खोदना. तो सॉइल पॉल्यूशन कहता है कि ज्यादा खनन करने से, माइनिंग करने से क्या होता है, भूमि बंजर हो जाती है. तो सॉइल पॉल्यूशन इन द जैन फिलोसफी अर्थ ऑफ कंसिडर्ड अ वन सेंट, मतलब पृथ्वी का एक जीव पाया जाता है इसमें, इसीलिए व्यर्थ की खुदाई आदि नहीं करनी चाहिए. नेचुरल फार्मिंग, लिमिटेड नीड्स ऑफ माइंडफुल यूज ऑफ लैंड, मॉडरेट कंजम्पशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस. वाटर पॉल्यूशन, Jain solution: water is living entity, its purity must be protected, use of filtered and warmed water. हमें पानी हमेशा छान करके पीना चाहिए. बचपन से ही सिखाया जाता है. हमारे जैन दर्शन के जो 3 सिद्धांत हैं, रात्रि भोजन त्याग, देव दर्शन और पानी छान करके पीना. तो ये एक तस्वीर दिख रही है स्लाइड में. ये व्यक्ति पानी छान रहा है कुएं से और छन्ना रखा हुआ है और फिर बाद में पानी छान करके वहां रखता जा रहा है और इसी पानी की बिनछानी वापस वो उसी में डाल देगा ताकि जो जीव उसमें आए हैं छन्ने में वो वापस मरे ना, इसीलिए वो वापस उसको उसी में करेगा. तो इस प्रकार से ये हमें बताता है कि पानी छान करके पीने से कई सारी बीमारियों से हम बच सकते हैं. जैन सॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन. इन द practice self-restraint and non-violence, reduce unnecessary industrial activities and emissions, promote simple, eco-friendly and disciplined living. The principle of non-possession, अपरिग्रह, in Jain philosophy state consume only as so much necessary. हम देखते हैं कि एक घर में 10 लोग हैं तो 10 के पास 12 गाड़ी हैं, तो आवश्यकता नहीं है. आवश्यकता से अधिक उपभोग क्या करता है, एयर पॉल्यूशन को ही बढ़ाता है. इसीलिए इसका हम पालन करेंगे अपरिग्रह सिद्धांत का, तो एयर पॉल्यूशन से कुछ हद तक बचा जा सकता है. रिसर्च मेथडोलॉजी, द रिसर्च पेपर प्राइमरली यूज 2 मेन रिसर्च मेथड, केस स्टडी मेथड. इसमें हमने ये बताया है कि हमारे जो जैन तीर्थ क्षेत्र हैं इसमें किस तरीके से पूरा पर्यावरणीय जो है क्या कहते हैं परिवेश है, पूरा चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, किसी प्रकार का प्लास्टिक का आप उपयोग नहीं कर सकते. ऐसे कई सारे, जैसे पाली ताना है, शम्मेश शिखर है, नेमावर है, कई सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं. यहाँ पास में पावागढ़ भी है. तो ये तीर्थ क्षेत्र इस प्रकार से जैन इकोलॉजिकल मॉडल एक हमारे सामने पेश करते हैं, जिससे हम ये जान सकते हैं कि किस प्रकार से एनवायरनमेंट पवित्र हो रहा है या कहना चाहिए. और दूसरा, हमने सोशल सर्वे किया है गूगल फॉर्म के माध्यम से एंड लोगों से फोन करके के माध्यम से या प्रत्यक्ष मिल करके. तो उसमें हमने पूछा क्या, वास्तविकता में 10 क्वेश्चन हमने उनसे पूछे और हमने पेपर में दिया है कि किस प्रकार से जैन पर्यावरणीय, जैन धर्म के सिद्धांत पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं. कंक्लूजन आए तो इस प्रकार से जैन फिलोसफी ऑफर्स अ कम्प्रिहेंसिव इकोलॉजिकल मॉडल दैट इंटीग्रेट्स ethical values with practical living being, viewing nature as a system and coexistence rather than a resource of exploitation. It emphasizes compassion, self-restraint and limited consumption as the foundation of environmental balance. Unlike approaches focused only on technology and policy, Jain thought highlights the transformation of human consciousness and lifestyle when combined with modern scientific
advancements. This ethical framework can promote sustainable development and foster of harmonious pollution-free relationship between humanity and nature. Thank you. Thank you, and thank you for being very punctual. So we have time for a couple of questions. How do we translate it into action? Biggest challenge, just the road from Baroda to Sumandeep University. You see how much pollution there is all the way. Where do we get started is my question. Thank you. थैंक यू सो मच सर. मैं तो क्या कहते हैं संदेश ही दे सकता हूं और इसके ऊपर हम स्वयं इसका पालन कर सकते हैं. अपरिग्रह हमारे पास अगर 2 गाड़ी खरीदने की क्षमता है तो हम चाहते हैं कि एक से ही काम चले और सामने जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं उनको प्रेरित कर सकते हैं. ये हम कर सकते हैं और आवाज तो उठा ही सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. नेक्स्ट स्पीकर हैं